Good morning students, this is Shubham Sharma presenting before you class 8th chapter number 1st, how, when and where. In previous class we have discussed an introduction of the chapter, we have discussed the importance of history, what is history, we have seen the definition of history which was the study of past events is known as history. Then we have studied the uses and scope for the history, why we study the history, what is the need of history, why historians write history. So, we have discussed all of those things in our previous class. Moreover, we have seen about dates, what are the dates, why dates are important and what role did dates play in the history. So, we have discussed all of these things in our previous class. In today's class, we are moving further and continuing our chapter. Today we will discuss about the periodization of history. Periodization of history. Periodization means कि हम इतिहास को खंडों में कैसे बांटते हैं. How we divide history into various parts, and parts means between different time periods, between different ages. First we will see the definition. Periodization of history means categorizing the history into ages and time periods which are different from each other. हिस्ट्री को कैटेगराइज करना, इतिहास को बांटना, किसमें? कालखंडों में, समय में, ठीक है, अलग अलग समय के बीच में विभाजित करना ताकि हर भाग जो है इतिहास का उसकी अलग अलग प्रमुख विशेषताएं रहें और ये विशेषताएं जो हैं दूसरों भागों से अलग रहती हैं. ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्ट की जो फीचर्स हैं वो दूसरे पार्ट के फीचर्स के साथ मिलती हैं, नहीं. Every part and every section of the history which we have categorized has unique different features in comparison to the other time period or other age of the history. So again we will see what is the periodization of history, categorizing the history into ages and time periods which are different from each other. For example, in Indian history is divided into three parts as you know: ancient history, medieval history, modern history. थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है इंडियन हिस्ट्री को. अब एंशिएंट हिस्ट्री, whatever happened in ancient history was different from medieval history. Whatever happened in medieval history was different from modern history. The features, the systems, the kingdoms, the peoples, the religion, the structure and the relation of the societies were different in all of these parts of Indian history. तीनों में अलग अलग हुआ करते थे. And जहां से ये चेंज शुरू होता है, we started to divide history into next part. ठीक है. So I hope आपको समझ आ गया होगा. तो कैटेगराइजिंग, जब हम कैटेगराइज करते हैं हिस्ट्री को इनटू डिफरेंट टाइम पीरियड्स, उसको कहते हैं हम पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री को बांटना, सिंपल. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाई वी नीड द कैटेगराइजेशन ऑफ हिस्ट्री, व्हाई वी नीड पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री? बिकॉज फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री, ताकि आपको पता है ना इतिहास लगातार चलता रहता है. इतिहास ये तो नहीं है कि 2 साल चला और 3 साल खत्म हो गया फिर से शुरू हो गया, नहीं है ना. सो why we need categorization? So we can understand and completely knows the history with all the continuity. History should continue. ठीक है. तो उसके लिए कि लगातार हिस्ट्री चलती रहे, हिस्ट्री के बारे में पता चलता रहे. जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भी बात किया था. फॉर एग्जांपल जैसे हमें पता है कि 1520 में क्या हुआ है, 1521 में क्या है और 1522 में क्या हुआ. बट अगले जो हमें पता चलता है कि इसमें तो नहीं, हम जो अगला हमें जो नॉलेज होती है वो 1530 की सीधा डायरेक्टली वी गोज टू 1530. 22 से लेकर 30 के बीच में क्या हुआ हमें नहीं पता. तो मतलब कि कंटिन्यूटी टूट जाती है. जो हम लगातार पढ़ रहे हैं वो हमें पता ही नहीं कि बीच के 8 सालों में क्या हुआ. सो इसके लिए हमें चाहिए कि 23 का ही पता होना चाहिए, 24 का भी एंड गोज ऑन.
So for continuity of history we need the categorization और periodization of the history. हमें हिस्ट्री समझने में और जानने में आसानी हो जाती है. In India the periodization of history was first done by a British historian and writer named James Mill. A British historian, writer and diplomat and administrator by name James Mill has concluded the Indian history's categorization and periodization for the first time. James Mill's work was different in its own space or in its own types. What James Mill did was, James Mill जो periodization करता है, what he did, James Mill did periodization in 3 parts. First, Hinduism, Muslim and third, British. So ठीक है, तो वो इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है, हिंदुइज्म में, मुस्लिम्स में और ब्रिटिश में. वो कहता है कि इंडिया में जब भी जो इतिहास हुआ है उसको वो 3 भाग में बांटता है. पहला पार्ट तो वो था जब हिंदू रूलर्स थे, दूसरा पार्ट वो था जब मुस्लिम रूलर थे और थर्ड पार्ट वो था जब ब्रिटिशर्स का रूल था. तो आपको समझ आ गया होगा कि जेम्स मिल डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. रिलीजन के उस पे जो है वो इंडियन हिस्ट्री को बांटता है कि which rulers who belongs to a particular religion dominates or rule over the India. First he said there was time of Hindus, then he said there comes Muslims, and then he said there comes Britishers. But this categorization faced different arguments from Indian historians. We see arguments against Mill's Indian history. What were the arguments? They said that it was wrong on James Mill's part to categorize Indian history on religion scale or on religious basis. जैसे आप देखो ये गलत है, क्योंकि अंडर द हिंदू रूल्स और हिंदू रूलर्स ऐसा नहीं था कि मुस्लिम रूलर्स नहीं थे. Under Prithviraj Chauhan there were many Muslim rulers who were ruling over Kashmir and Kabul Kandhar area of India. उस टाइम हिंदूज के अंडर मुस्लिम भी रूल हुआ करते थे. एंड अंडर द मुस्लिम रूलर्स हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एरा की बात करते हैं, मुगल पीरियड की बात करते हैं, तो उस टाइम पे तो हिंदू रूलर भी थे, लाइक राजपूत इन राजस्थान. ठीक है, तो मुगलों के टाइम पे हिंदू रूलर राज कर रहे थे. देन केम ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स के अंडर भी तो कई हिंदू एंड मुस्लिम्स दोनों ही प्रिंसली स्टेट्स थी, लाइक नवाब ऑफ भोपाल, किंग ऑफ पटियाला, है ना. तो ऐसे करके मुस्लिम्स भी थे, सिख भी थे और हिंदू भी थे, तो तीनों के अंडर तो वो सब मिक्स हो रहा है. So there comes an argument against the James Mill's periodization, and this periodization declared null and void and not effective. इसको खत्म कर दिया गया, इसको मना कर दिया गया. After that, or against the James Mill's periodization, Indian historians gave their own periodization. Indian historians evolve a new type of or new phase of periodization of Indian history. They adopted Western Europe's method or Western civilization's method. Indian historians ने क्या किया? वेस्ट का सहायता ली, वेस्ट की हेल्प ली. वेस्ट मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन. In Western civilization, the history is divided into 3 parts: ancient history, medieval history, and modern history. So on the same scale of Western civilization, Indian historians also divided and categorized Indian history under ancient, medieval and modern history. उन्होंने इसको पार्ट कर दिया, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, और इसको भारतीय इतिहास को इन तीनों में बांट दिया गया. Now ancient history means कि किसी को कोई नॉलेज नहीं है,
सब जंगलों में रह रहे हैं, प्री डोमिनेटिव सोसाइटी है, प्री नोमैडिक सोसाइटी है, फार्मर्स हैं, कल्टीवेशन शुरू हुआ है, ऐसी हिस्ट्री। मिडीवल हिस्ट्री इन विच देयर वर देयर वाज नो टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस, कोई एडवांसमेंट्स नहीं है, किंगडम्स वर फाइटिंग विद ईच अदर, घोड़े हाथियों के साथ लड़ाई हो रही है, ऐसा युग एक है। उसके बाद मॉडर्न में, मॉडर्न हिस्ट्री डिपिक्ट्स द मॉडर्नाइजेशन इन द सोसाइटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ता है, ट्रेड बढ़ना शुरू हो जाता है, इनोवेशन शुरू हो जाती है, आयरन एंड स्टील कम्स, स्टीम इंजन बन जाता है, मोर ओवर द आइडिया ऑफ लिबर्टी, आइडिया ऑफ फ्रीडम, आइडिया ऑफ इक्वालिटी, ऐसे आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। तो इन तीनों को जो है, तीनों में जो है इंडियन हिस्टोरियंस इंडियन हिस्ट्री को बांटते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। बट वी फेस सम क्रिटिसिज्म, कुछ आलोचना भी की जाती है इस पीरियडाइजेशन के बारे में। कैसे? सिंपल, जल्दी से देखेंगे। क्या होता है कि मिडीवल हिस्ट्री डिपिक्ट्स द अनडेमोक्रेटिक रूल। अनडेमोक्रेटिक रूल मतलब कि जहां पर लोगों को आजादी नहीं थी, कहने का मतलब ऐसा है। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा था? अंडर अकबर्स रूल देयर वाज लिबर्टी, देयर वाज फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मुगलों के टाइम में तो था, औरंगजेब के बाद में अलग होती है, बट अंडर द अकबर्स एंड जहांगीर्स रूल एंड इवन वी कैन से शाहजहां's रूल, देयर वाज अ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देयर वाज फ्रीडम ऑफ ट्रेड, तो उनको आज़ादी थी। एंड सेकेंड कि अंडर द मॉडर्न टाइम पीरियड और मॉडर्न एरा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन सेज देयर कम्स इक्वालिटी, देयर कम्स न्यू इनोवेशंस, देयर कम्स लिबरल व्यूज। बट इंडिया में क्या था? मॉडर्न पीरियड हम देखते हैं क्या है कि अंग्रेजों का राज है, ब्रिटिश हुकूमत है, ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिशर्स ने तो हमें दबा के रखा। दे ट्रीटेड अस लाइक स्लेव्स, दे ट्रीटेड अस लाइक इन्फीरियर्स, दे बायस्ड अगेंस्ट वाइट, बिटवीन वाइट एंड ब्लैक। सो ये पीरियड तो खराब था। तो देयर कम्स अ क्रिटिसिज्म इन this categorization of Indian history, but still we continues with this periodization and this study and this method of categorization of Indian history. In next chapter we will discuss about the colonialism, how administration of India works under the British India. We will see the uses of official records and importance of official records. Thank you.